शाहरुख खान टर्न 60 ऑन November 2nd. आपका एसोसिएशन शाहरुख के साथ बहुत पहले का है. शाहरुख खान जब शाहरुख खान नहीं बना था. Can you recall your first meeting with Shahrukh Khan? Shahrukh Khan was, since day one, he was Shahrukh Khan only. But yeah, definitely, he was not that big that time. But he was same actor that time also. He was from day one, he was very good actor. I met him first time for Bazigar. And we were just looking for somebody, for Bazigar, some star. But we didn't get anybody. I approached Salman, Anil Kapoor, but they were not available. They were not interested in this kind of a script. So I saw the songs of Deewana, and I saw this personality of this gentleman, and I thought, yeah, he may be very suitable. So I also that time was a new producer. Bazigar was my second film. So I went to meet him at Sea Rock Hotel. We spoke on phone, and he said, okay, let's meet. And he was at the poolside that time. I think he was swimming. And when I went, he came out. We sat there. And he asked me, what are you making? I said, yeah, the film is titled Bazigar. And this is this kind of story. I narrated him. And he said, yeah, I know about this. So somebody must have told him. I don't know. And yeah, I will do it. And सोचा भी नहीं उसने? No, because he knew about something. I don't know. Maybe through somebody. So I will do, and I can guarantee you that I'll be the best for this role. Nobody in industry will be able to do the way I do it. I will do it. So I was very impressed with this reply. Impressed and confident also. Yeah, from inside I thought, yes, I must work with this gentleman only. And then we discussed money and everything. And I think everything was decided there only. We shook hands and he was done. Then I informed my director that, okay, I met Mr. Shah Rukh Khan and he's ready to do our film. And I've discussed everything. And now you please meet him and narrate him everything. So it happened like that. और पैसा कितना इम्पोर्टेंट था शाहरुख उस समय? पैसा मुझे समझ में नहीं आई बात, बिकॉज उसने मुझे एग्जाम्पल्स दिए. I did this film in 50,000. I did this film in 1 lakh. I did this film in 5 lakh. But I will charge you 20 lakh. I said, why? Because this is going to be a very successful film, and you are going to make big money in this. And I will give you value for money. So I was impressed with that thing also. But finally we came to one figure, which I don't want to disclose. And see, above that, what he did, he wanted to buy a house once, and he needed some money. He just told me, can you give me this kind of money by tomorrow or day after? I want to buy a house. I said, okay, no problem. I gave him money. And when the final payment time came, he reduced the fee by, I think, 4 lakhs. He said, you pay me less because you paid me when I needed money. तो आप शाहरुख as a person आप क्या समझते हो आज? How is he as a person? Because you have seen all the 3 Khans. What do you think of Shah Rukh Khan? I think not only Khans, but if I compare him with any star of Shah Rukh's time, he is the best. He is the best as an actor, as a person, is very good. He gives you so much of respect, and he is always nice to his producers. See, if he has got some problem, he may not do his next film. That is different thing. But till he is shooting for the film, he is completely with him. पर आपने एक नहीं कितनी सारी फिल्में की. उसके बाजीगर के बाद कौन सी फिल्म की? बाजीगर के बाद मैंने बादशाह की. एंड बादशाह के बाद मैंने की यस बॉस. यस बॉस के बाद जोश. और जोश के बाद हम लोगों ने साथ में प्रोड्यूस की थी मैं हूं ना. दैट वाज माय लास्ट फिल्म विद हिम. उसके बाद चांस आया नहीं कभी.
और बादशाह के बाद वो बादशाह जो टाइटल था वो उसको स्टिक हो गया, बादशाह ऑफ द इंडस्ट्री हो गया। टेल मी अबाउट दैट। बिकॉज देखो उस फिल्म में एक गाना भी था, बादशाह ओ बादशाह, दैट ऑल्सो एडेड एवरीथिंग टू दिस टाइटल। एंड सी व्हेन ही बिकेम बिग तो सब लोगों ने उसको किंग खान बोलना शुरू किया, किंग मीन्स बादशाह। सो बादशाह उसके नाम के साथ, अभी आपने देखी होगी वेब सीरीज इसकी उसके बेटे की, उसमें भी बैकग्राउंड में किसी का गाना बजता है, व्हेन ही एंटर्स बादशाह ओ बादशाह। सो आई थिंक बादशाह उसको किसी ने बनाया नहीं, वो बन गया। आप कितना चेंज देखते हो शाहरुख में? वो जो शाहरुख आपने पहले मिले थे आप बाजीगर में और आज का शाहरुख, क्या अंतर दिखता है आपको? एंड वेयर ही स्टैंडिंग टुडे, व्हाट कुड बी द रीजन दैट ही स्टैंडिंग एट नंबर 1 इन टुडे? मुझे कोई खास फर्क नहीं दिखा। हाँ, फिल्म मेकिंग में फ़र्क आ गए, डायरेक्टर्स में फ़र्क आ गए। आज जिस तरह की फिल्म वो करना चाहता है, हो सकता है मेरे पास ऐसा डायरेक्टर नहीं हो हाथ में, क्योंकि जितने भी बड़े डायरेक्टर्स, बड़े कौन है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जितने भी ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो शाहरुख को इम्प्रेस कर सकते हैं, या शाहरुख जिनसे इम्प्रेस होता है, वो या तो प्रोड्यूसर बन चुके हैं या शाहरुख की कंपनी उनको एज डायरेक्टर साइन कर लेता है, फिर मेरा रोल उसमें ख़त्म हो जाता है। सी टुडे ही डजंट नीड मनी टू मेक अ फिल्म, ही हैज़ गॉट एवरीथिंग। तो फिर भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, अभी भी हर 2-3 महीने मेरी बात होती है, लेट्स मेक बाजीगर अगेन। ही सेड ओके, लेट्स गेट अ स्क्रिप्ट, लेट्स गेट अ गुड डायरेक्टर, जो अभी मेरे पास नहीं है। कोई भी फिल्म बगैर स्क्रिप्ट के नहीं बनती, सिर्फ टाइटल पे तो फिल्म नहीं बन सकती ना। अगर आज मैं बाजीगर बनाना चाहता हूँ, मेरे पास एक सही स्क्रिप्ट होनी चाहिए जो मुझे खुद को पसंद हो, जिससे मैं शाहरुख को इम्प्रेस कर सकूँ। तो वो हो नहीं रहा है। मतलब शाहरुख किस चीज़ से इम्प्रेस होता है आपको, ऐसा लगता है? सी एक ज़माना था वो सिर्फ स्क्रिप्ट से इम्प्रेस होता था, आज उसको स्क्रिप्ट और बिगनेस दोनों चाहिए। आज वो शायद पहली टाइप की फिल्म ना करे, शायद आज वो अशोका टाइप की फिल्म ना करे। सो अपना उसका एक प्लस, उसकी एक एज भी है ना। सी ही हैज़ टू प्ले हिज एज, ही कैनॉट प्ले अ रोमांटिक हीरो और बॉयश हीरो जहाँ उसको स्क्रीन पर वो गाने गा रहा है, वो नहीं होगा। तो उसका मतलब टाइम के साथ, एज के साथ उसका चेंज हो गया ना स्क्रिप्ट सिलेक्शन भी। And that's the reason I've come, because he turns 60 now on November 2nd. You think cinema बदला है तो the choice of stories for actors of his age है हमारी इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा स्टोरीज जो पीपल लाइक शाहरुख और सलमान और आमिर कैन प्ले? बहुत कम है, नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं है जो अंदर से रियल वो इम्प्रेस हो सके। मेरे ख्याल से आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एज के एक्टरों के साथ हम एक्शन फिल्म बनाते हैं। एक्शन फिल्म में जब तक कोई रिवेंज या कोई रीज़न नहीं है, वो नहीं चलती है। आप सिर्फ हॉलीवुड को कॉपी करके एक्शन फिल्म बनाएंगे, मेरे हिसाब से नहीं चलती वो फिल्म। होता क्या है, देन यू स्पेंड मनी लाइक नथिंग, VFX ये वो सब करके हम करते हैं, जो ऑडियंस भी जान गई है अभी कि ये सब VFX है। देखिए रियल स्टोरीज क्या होती है, आज जो इनकी एज है, आप तीनों खान की बात कर रहे हैं, मैं अक्षय की भी बात कर रहा हूँ, मैं अजय की भी बात कर रहा हूँ। आज वो क्या करेंगे, आइदर दे प्ले फादर विच नोबडी वांट्स टू प्ले, और दे प्ले एल्डर ब्रदर ऑफ अ सिस्टर और अ ब्रदर, मतलब और क्या, और ऑफिसर एज एन ऑफिसर, जो CBI का ऑफिसर हो या आर्मी का ऑफिसर हो, तो वो भी फिल्में इतनी ज़्यादा बन चुकी है तो अब कोई वैसी स्क्रिप्ट मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप इस एज के जितने भी हीरोज़ हैं, आप देख रहे होंगे कितना कम काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी स्क्रिप्ट नहीं समझ में आती है खुद को। सिनेमा बदला है कि टाइम बदला है कि हम लोग इतने कोविड में इतने एक्सपोज हो गए वर्ल्ड सिनेमा के, हमारी तरीके का सिनेमा, हमारी तरीके की स्क्रिप्ट अब चलती नहीं है, ऑडियंस को चाहिए नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली उनके टाइप की स्क्रिप्ट नहीं चल रही। मैं उल्टा बोलूँगा। हाँ, जब आप स्क्रिप्ट, आपकी साइज़ छोटी हो ना स्क्रिप्ट की, तो उसका बजट भी कम होना चाहिए। आज मेरा एक्टर अगर मुझे बोलता है कि मैं इतने पैसे लेता हूँ और इतना शेयरिंग लूँगा, तो नहीं होता। वैसा शाहरुख के साथ नहीं है,
पर है कुछ एक्टरों का, अगर आप पहले से बोलते हैं कि मुझे आप इतने करोड़ दे दीजिए प्लस इतना शेयरिंग, तो प्रोड्यूसर सोचने लगता है कि इस फिल्म का बिजनेस इतना होगा। या तो आप बोलो कि हाँ ये आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है और मैं आपके साथ काम करता हूँ शेयरिंग बेसिस पे, मैं डाउन पेमेंट नहीं लूँगा, तो प्रोड्यूसर को क्या प्रॉब्लम है? फिर आप उस टाइप की स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं जो बहुत बड़ी नहीं है साइज में, दिखने में, इसीलिए वैसी फिल्में बनती नहीं है अभी। तो मैं हूँ ना के समय आप क्या किस तरीके का इक्वेशन था आपके साथ? हम लोग 50-50 पार्टनर्स थे उसमें, अच्छा, बिकॉज तो पूरा आइडिया शाहरुख का था, शाहरुख ने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, बट हम लोग बहुत क्लोज थे। ही ट्रस्टेड मी एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड will you like to be a partner in this film? I said I will be more than happy. तो फिर तो शाहरुख के साथ बाकी तो बातें ही नहीं थी ना कभी कि पैसे क्या लगेंगे, क्या होगा, जो भी बोलता ठीक ही था। मुझे बहुत शौक था उसके साथ काम करने का, है भी। अभी भी है? हाँ बिल्कुल है। अभी अगर कभी कुछ बन जाए, कभी मेरे पास कुछ ऐसा मटेरियल आ जाए, तो आई कैन गो एंड प्रेजेंट टू हिम, आई कैन गेट इन टच विद हिम एनी टाइम। Do you recall, because each time we talk about Yes Boss, there is one scene that has, I think, Mannat in the backdrop. Any of the scenes in one of your films that has Mannat in the backdrop, which is Yeah. Mannat today? या मन्नत के बैकग्राउंड में एक गाना था हमारा जो पूरा बैंड्रा में शूट किया था, बस इतना सा ख्वाब है, जहाँ शाहरुख ट्रक पे पियानो लेके बैठा है, वो पूरा गाना उसी रोड पे शूट हुआ था। पर आपको ऐसा लगता है कि शाहरुख पहले से इतना एम्बिशियस था, कहा था कि मैं आऊँगा तो मेरे को, मतलब किस तरीके का पर्सन था? वेरी एम्बिशियस, ही वांटेड टू बिकम द किंग ऑफ द इंडस्ट्री, हाउ वाज ही? आई डोंट थिंक, वो ऐसा नहीं था, उसको अपने आप को प्रूव करने का बहुत शौक था कि आई वांट टू डू गुड फिल्म्स, आई वांट टू डू बिग फिल्म्स, आई वांट टू डू फिल्म्स विच विल गिव मनी टू द प्रोड्यूसर। एंड हाँ, पैसे का किसको शौक नहीं होता, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। तो पैसा उसके पास अपने आप आ गया। आज भी मैं कभी बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार कितना पैसा है तेरे पास? कहाँ है रमन साहब? नहीं है मेरे पास, इतना पैसा नहीं है जितना आप सोचते हैं। मैं सोचता ही नहीं कुछ भी, ऊपर वाला आपको और ज़्यादा दे रहे हैं, मुझे कोई। अभी तो आया ना 12,000 करोड़ का, तो वो इज ऑन द बिलियनर्स लिस्ट, 12,000 करोड़। हाँ ऑफ कोर्स उसके पास होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि उसने मेहनत भी बहुत की है। उसने, मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि उसने कितने ऐड किए, उसने कितने प्रोग्राम्स में, वो शादियों में भी गया, वो बोलता था कि मुझे पैसे मिल रहे हैं ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है शादी में जाने में, अगर मैं आधा घंटा 1 घंटा जाके आता हूँ, लोगों को खुशी मिलती है, मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो वो सब कुछ कर लेता था, अब शायद अब भी करता है मेरे ख्याल से। तो यस बॉस की कहानी बताओ, कैसे हुआ फिल्म वापस? यस बॉस ऐसे कि ये अजीज़ मिर्ज़ा के बहुत क्लोज था शाहरुख, पहले भी वो राजू बन गया जेंटलमैन शायद उन्होंने बनाई थी, तो अजीज़ की इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो ही ऑलवेज ट्रस्टेड अजीज़। तो अजीज़ ने ये कहानी उनको सुनाई थी, एंड मैं प्रोड्यूसर था जो 2 फिल्में ऑलरेडी उसके साथ कर चुका था, और जूही के साथ भी वो बहुत इजी था, मतलब उनका भी अच्छा एक कॉम्बो था, तो वो बन गया प्रोजेक्ट। तो उसमें ये था कि उसको हमेशा एक, शाहरुख के मन में एक हमेशा था कि कुछ तिकड़म वाला रोल किया जाए। सीधे साधा रोल तो सब करते हैं, जैसे बाजीगर में उसने विलन का रोल किया, इसमें भी कुछ रोल ऐसा ही था कि जिसको हम सस्ती भाषा में क्या बोलते हैं आपको मालूम है, लेकिन उसने वो रोल किया। मैं बोला कि ठीक है, लेट पीपल से आई हैव प्लेड अ पिम्प, ठीक है कोई बात नहीं, बट एक उस फिल्म में एक जगह जाके उसको रियलाइज तो होता है ना कि यस वॉट एवर आई वॉज डूइंग वॉज नॉट गुड, नॉट ओके। ये तो एक्सपेरिमेंट करता है बहुत ज़्यादा। You think for an actor like Shah Rukh Khan, age will matter? Age matters for everybody, but yeah, he, like Amit ji, till he is there, he will get roles. He will get different kind of films. He has to accept it कि I want to do it. But still he is very energetic. उसका आप उससे अगर मिलोगे, बात करोगे,
आपको कहीं लगेगा नहीं कि वो थक गया है, जैसे कुछ एक्टर्स का लग रहा है। बट इज इट ट्रू दैट सलमान को भी आपने बाजीगर ऑफर किया था एंड व्हाट हैपेंड? सलीम साहब गिव यू सम ज्ञान? हाँ, मैं उस वक्त, उसके पहले मैंने एक फिल्म कोशिश की थी। एक डायरेक्टर थे इस्माइल श्रॉफ, तो इस्माइल श्रॉफ के साथ एक फिल्म मैंने कोशिश की थी, सलमान, ऋषि कपूर एंड माधुरी दीक्षित। वो प्रोजेक्ट आगे चला, लेकिन किसी वजह से चिंटू जी ने बोल दिया मैं नहीं करूँगा। कि सलमान की फिल्म है, मैं क्यों करूँ, चिंटू जी कैसे थे वैसे ही थे। फिर वो प्रोजेक्ट नहीं बना। तो मैं सलीम साहब से मेरा बहुत अच्छा था, तो मैं सलीम साहब के पास गया था लेके, तो सलीम साहब ने बोला कि सलमान तो करेगा नहीं, और आप मेरे दोस्त हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये फिल्म मत बनाइए, ऐसी फिल्म कभी चलती नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है। मेरे अंदर तो वो जुनून था कि मुझे ये बनानी है। बोनी कपूर ने बोला कि अनिल तो साउथ में सब सारे मतलब क्या बोले, गुड हार्टेड मैन बोलो या भगवान है बोलो या वैसे रोल करता है, तो वो ऐसा विलन का रोल क्यों करेगा। तो उन्होंने भी ना बोल दिया था। इसके सिवाय छोटे मोटे एक्टर तो करने के लिए बहुत तैयार थे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे दिमाग में फिर संजू का भी आया था दिमाग पर। संजू बड़ा था इस रोल के लिए, उस वक्त भी बड़ा था, आज तो खैर। तो ये शाहरुख को सूट करता था रोल। पर आपको रिस्क लगा था कि सब्जेक्ट उस तरीके का सब्जेक्ट, एंटी हीरो का सब्जेक्ट लेके जाना? मैं खुद ही ऐसा ही हूँ, मैं सोचता हूँ कि एंटी बनानी चाहिए या कुछ हट के बनाना चाहिए, रेगुलर फिल्म में क्या है। But that film came at a time when it was all about what kind of cinema was being made in the early 90s when you got Bazigar? Romantic, mostly romance, family, कॉमेडीज बहुत कम। कॉमेडीज भी 97, 98 के बाद जब डेविड और प्रियन जी ने मोस्टली कॉमेडी का भी शुरू किया, इसके पहले कॉमेडीज भी इतनी नहीं बनती थी। थ्रिलर्स बहुत कम बनते थे, थ्रिलर्स बी ग्रेड बनते थे। बाजीगर ए ग्रेड थ्रिलर था, बाजीगर विद सच अ गुड म्यूजिक। नहीं तो इस टाइप की फिल्म में म्यूजिक डालना। एंड हाँ, एक काम इसमें मेरे डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छा किया था, जिसके मैं और शाहरुख अगेंस्ट थे। उन्होंने फैमिली इमोशन डाला, हम दोनों खड़े हो गए नहीं ये तो पिक्चर को बिगाड़ देंगे आप। और उन्होंने बोला नहीं ये करना पड़ेगा। जो माँ का इमोशन, माँ बाप का रिवेंज ड्रामा, जब तक ये नहीं होगा पेरेंट्स का रिवेंज, तब तक दिस मे नॉट वर्क। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो कैरेक्टर है ना, उसको जस्टिफाई करता है कि इस आदमी ने ऐसा क्यों किया, अदरवाइज फिर वो टोटल नेगेटिव हो जाता है। सो दैट वर्कड, वो जो डायरेक्टर्स ने किया। You mentioned that Shahrukh and you stood up. He didn't want that thing, but शाहरुख कितना इन्वॉल्व होता है अपनी स्क्रिप्ट के साथ, बिकॉज अब इतनी सारी फिल्में आपके साथ की है। वो स्क्रिप्ट से ज़्यादा कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व ज़्यादा होता है। स्क्रिप्ट के लिए हमेशा वो डायरेक्टर को बिलीव करता है। और जिस ज़माने में हमने ये सब फिल्में बनाई ना, उस ज़माने में मतलब पूरी स्क्रिप्ट कभी डायरेक्टर देते ही नहीं थे। आइडिया लेवल पे सुनाते थे, फिल्म की शूट होती जाती थी, स्क्रिप्ट लिखते रहते थे। उसमें कई बार नहीं, ज़्यादा बार प्रोड्यूसर का नुकसान ही हुआ है। जो फिल्म 70-80 दिन में, उस ज़माने में 100 दिन तो लगते ही थे, 100 दिन में शूटिंग ख़त्म होनी थी, वो 200 दिन चलती थी, रीशूटिंग होती थी। एक्टर एक साथ में 5-5, 6-6 फिल्में करते थे, तो एक बार आपकी डेटें चली गई, आप बैठे रहो। तो ऐसा बहुत होता था। मोस्ट ऑफ द फिल्म्स ओवर बजट होती थी। How was Shahrukh to work with in terms of, you say he's a producer's actor, correct? How is he? Extraordinary, कभी उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बाई चांस कभी 1 घंटा लेट भी आया, जब तक आपका काम ख़त्म नहीं होगा वो काम करता रहेगा। शाहरुख जिस ज़माने में आया 90s, अर्ली 90s में, दैट इज अर्ली 90s, उस समय कंपटीशन बहुत था बिटवीन द खान्स ऑल्सो कमिंग, ऑल द दो खान। उस समय कैसा था उनका? फ्रिक्शन होता था, कंपटीशन होता था, कैसा होता? शाहरुख का, सलमान का, आमिर का, कुम? देखिए, जब शाहरुख ने शुरुआत की थी ना बाजीगर के वक्त, उस वक्त तक आमिर और सलमान दोनों बड़े एक्टर थे, बन चुके थे। आमिर का मैंने प्यार किया आ गई थी, सलमान की मैंने प्यार किया आ गई थी, आमिर की वो जो पहली फिल्म थी, हाँ, क़यामत से क़यामत तक, वो आ चुकी थी।
दे हैव ऑलरेडी प्रूव्ड बाय दैट टाइम. मेरे ख्याल से शाहरुख की पहली सक्सेसफुल बाजीगर थी, फर्स्ट सक्सेसफुल. बाकी फिल्में उसकी जो भी थी चली कोई नहीं थी. और उसके बाद तो एक और फिल्म कंप्लीट पड़ी थी उसकी इसी टाइप की, डर, जो यश जी सोच रहे थे कैसे रिलीज करूं. जब बाजीगर रिलीज हुई, यश जी ने देखा पब्लिक तो ये देखती है, उन्होंने फट 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 उन्होंने भी रिलीज कर दी. उसमें ही वॉज एन ऑब्सेस्ड लवर. आपको तो फिल्म सबने देखी हुई है. तो और हम लोग तो नए थे ना, हम तो ऐसे थे कि करो यार जो होगा देखा जाएगा. हम तो इस तरह से काम, खुद के पैसे लगते थे. ये भी नहीं है कि किसी से उधार ला के बनाई है, तो उधार भी लाते भी थे, अपने ओन पे लाते थे. वो मैं वापस आती हूँ कि उस समय कैसा था, कितना कंपटीशन था. बिकॉज शाहरुख आता, इन लोग ऑलरेडी स्टार्स थे, शाहरुख आता, कितना इक्वेशंस चेंज हुए लोगों के साथ. शाहरुख के आने के बाद कितना बदला इंडस्ट्री का. बहुत. बाकी लोगों की फ्लॉप शुरू हो गई थी, शाहरुख की डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बहुत सी उनकी ऐसी ऐसी फिल्में आई कि ये बिकम ए बिग स्टार देन. और उसके बाद मेरे ख्याल से आज तक शाहरुख उनसे बड़ा ही रहा है, दोनों से. वो कुछ भी बोल दे, वो दिखाता भले कम होगा, लेकिन वो बड़ा ही रहा है और आगे भी बड़ा ही रहेगा. आपको लगता है शाहरुख के बाद कोई सुपरस्टार होगा हमारी इंडस्ट्री में? वो तो बोलना बहुत मुश्किल है, आज तो नहीं दिखता. रणबीर कपूर इज़ वेरी गुड बट नॉट शाहरुख खान. Which film you think made Shah Rukh Khan the king of industry? Which was that film? He became the king of Bollywood. I won't say बाजीगर, it was दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. बिकॉज उसमें वो होलसम एक कैरेक्टर बन गया था पूरी दुनिया को, जो एक जिसको लोग प्यार करने लगे थे, चाहने लगे थे. रोमांटिक फिल्में हमेशा बहुत अच्छी होती है, जो हमारे यहाँ ठीक से बनती नहीं है. उसके बाद तो चलिए ठीक है, मोहब्बतें भी आई, दिल तो पागल है भी आई, बट कोई भी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया जैसी नहीं थी. सर पर उस समय भी अमिताभ बच्चन से उनकी कंपैरिजन होती थी शाहरुख की? नहीं, उस वक्त नहीं. उन्होंने डॉन भी तो की शाहरुख ने ना. वैसे कंपैरिजन कुछ नहीं. अमिताभ बच्चन अपनी जगह बहुत बड़े थे, है. पर हाँ, अगर आप उस लाइन से सोचे, आज मुझसे कोई पूछे, जितना मेरा नॉलेज है, जितना वक्त मैंने देखा है, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये तीन एक्टर इस पूरे टाइम में, इन तीनों से बड़ा अपने अपने टाइम पे कोई नहीं. यूसुफ साहब के टाइम पे सबसे बड़े वो थे, अमिताभ बच्चन के टाइम पे सबसे बड़े वो थे, और इस ये अभी जो ये खान या कुमार या जो भी है, उनमें सबसे बड़ा शाहरुख खान. What sets Shah Rukh Khan apart from the rest? See, because everything. सबसे बड़ी बात है एक्टर. As an actor, as a human being, they are all good, but it changes with person to person. मेरे साथ शाहरुख का जितना अच्छा है, शायद मेरा दूसरों के साथ भी अच्छा है, पर इतना अच्छा नहीं है. See, I have made 8 films with अक्षय कुमार. मेरा आज भी बहुत अच्छा है, बट हाँ, वो बात नहीं बनती मेरी जो शाहरुख के साथ बनती है. और आमिर के साथ भी मैंने 2 फिल्में की है, लेकिन मेरा उनके साथ ज़्यादा कभी नहीं बना. साफ बात है, होता है कभी कभी, क्योंकि हर एक एक्टर, हर एक इंसान अपने दिमाग से सोचता है. वो खुद को कितना अच्छा समझता है, आपको कितना बुरा समझता है, वही जाने. ऐसा कोई किस्सा है शाहरुख के साथ over the years that has stayed with you and that you can share with us? नहीं, ऐसी अच्छी बातें तो बहुत सी है, पर बाकी भी कई बातें होंगी जो शेयर करने के काबिल नहीं होती. कोई ऐसा जो आप ऑडियंस के साथ शेयर कर पाओ? चलो मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं है उसमें. मैं जब यस बॉस बना रहा था, तो शाहरुख की डेटों का कुछ इशू हो रहा था शुरू करने में. अजीज़ मिर्ज़ा क्या करते थे, उनका बहुत अच्छा था शाहरुख के साथ, लेकिन वो मुझे मतलब हमेशा यूज़ करते थे कि यार शाहरुख को बोलो डेट नहीं दे रहा अभी तक, क्या है, कब शुरू करेंगे. एक दिन एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वो डार्लिंग ये है इंडिया, महालक्ष्मी स्टेशन के पास में कोई साइंस सेंटर कुछ है वहाँ पे, नेहरू साइंस सेंटर. तो अजीज़ ने मुझे बोला शाहरुख नाइट शूट कर रहा है, नहीं, शाहरुख नाइट शूट कर रहा है, तो हम लोग मिलने चलते हैं. मैंने बोला ठीक है, मैं आता हूँ.
हम दोनों वहाँ पहुँचे, हम बैठे रहे 12 बजे, 1 बजे तक, 12 बजे तक। अजीज़ भाई ने मेरे को 2-3 बार बोला, यार बोलो उसको कि क्या है। तो मैंने, गलती मेरी थी, उनकी कोई गलती नहीं थी। और अजीज़ भाई ने ही ये बात बोली थी कि अगर उसको नहीं करनी है तो किसी और के साथ कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहे तो मैंने बात करते करते उसको बोल दिया कि आप अगर नहीं करना चाहते तो मैं सैफ के साथ बना देता हूँ। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मेरे मुंह से कैसे निकल गया, क्यों निकल गया मालूम नहीं। मैं घर आ गया, 2 बजे के करीब मैं घर पहुंचा। 3 बजे फ़ोन आया। पहले उन्होंने हरी सिंह को फ़ोन किया, मेरे जो देखते थे प्रोडक्शन। हरी सिंह को बहुत उन्होंने सुनाया, दुनिया भर का सुनाया, क्या मुझे लगता है गालियाँ भी दी होगी। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया, बोला रतन साहब आपने ये बोला कि आप सैफ, फिर सैफ के लिए बोला उन्होंने जो वो बोलना चाहते। कौन सैफ जो, पर उस वक्त उसका गुस्सा था। मैंने बोला शाहरुख देखो, मेरे मन में कभी ये नहीं था, ऐसे बात बात में मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी। बोला नहीं नहीं, ऐसे कोई थोड़ी बोलता है, आपके मन में था तभी तो बोला। बोला जो हो गया वो तुम वर्ड वापस मुंह में नहीं जा सकते। तो उन्होंने फिर बोला मैं एक काम करता हूँ, आपकी जो दोनों फिल्में हैं वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ, बादशाह और ये था जोश तो बाद में थी, बादशाह हाँ मैं कंप्लीट कर देता हूँ, इसके बाद हम लोग काम नहीं करेंगे। तो मैंने फिर बोला नहीं शाहरुख ऐसा बात नहीं है, हम मिलते हैं बात करते हैं। तो 1-2 दिन हमने बात नहीं की। उसके बाद मैं मिला, वो अपना उनका जो मैनेजर था, क्या नाम जिसकी डेथ हो गई मालूम है ना, अनवर। मैंने अनवर को बोला, अनवर बोला यार आपने ऐसे कैसे बोल दिया। बोला अनवर मुझे भी ध्यान नहीं कैसे निकल गया मेरा। तो बोला मैं शाहरुख से बात करता हूँ, लोग मिलिए। फिर हम लोग मिले, वापस सुलह की, क्योंकि गलती मेरी थी तो मैंने मानी, नहीं बोलना चाहिए था मुझे। एक अलग कास्टिंग की लोग बात, मतलब जोश में कास्टिंग करना, उस तरीके का कास्टिंग विद शाहरुख एंड ऐश्वर्या एज ब्रदर सिस्टर, उस कास्टिंग के पीछे की कहानी क्या है, अगर इफ देयर इज एनी स्टोरी? ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं बोलूँगा तो बहुत इसके मीनिंग अलग अलग निकलेंगे। लेकिन हाँ, इसमें भी ऐसा था कि पहले कर रहे थे आमिर और शाहरुख। तो शाहरुख मेरी तरफ से था, आमिर मंसूर की तरफ से था। वैसे आमिर को मैं भी जानता था, मैं पिक्चर कर चुका था उसके पास, अकेले हम अकेले तुम, जो नेक्स्ट पिक्चर थी। तो 2 रोल थे, चंद्रचूड़ सिंह वाला और शाहरुख वाला। तो हमने पहले से ही डिसाइड किया था कि आमिर चंद्रचूड़ वाला रोल करेगा, शाहरुख जो मैक्स का कैरेक्टर था वो करेगा। और मैंने शाहरुख को हमेशा यही बोला गया था, मंसूर की तरफ से भी मेरी तरफ से भी, क्या मालूम क्यों शाहरुख को कहीं से भनक मिली जो मुझे भी नहीं थी। मंसूर ने एक आध बार मेरे से पूछा कि आमिर मैं ऐसा चाहता है कि वो मैक्स प्ले करे। बड़ा सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं करूँगा ही नहीं, शाहरुख ही करेगा। एक दिन एक जॉइंट मीटिंग रखी गई इसी कमरे में, अंदर के कमरे में, यहाँ नीचे गद्दा लगा हुआ था, टेबल चेयर नहीं होते थे। तो मंसूर आमिर आ गए और मैं भी था ऑफिस में, हम तीनों अंदर बैठे थे बात कर रहे, तभी आया शाहरुख, इधर शू उतार के आया अंदर, सबसे मिला। शाहरुख ने बोला कि यस मंसूर लेट्स स्टार्ट। उसने बोला जॉइंट नरेशन करते हैं। शाहरुख ने मुझे बोला था एक जॉइंट नरेशन करते हैं, उसको कहीं से क्या मालूम भनक लगी कि क्या। तो नरेशन के पहले मंसूर ने उसको ये इंडिकेशन दिया कि आमिर वांट्स टू प्ले मैक्स, खाली एक ही डायलॉग बोली। ये साहब खड़े हुए जूता पहन के निकल गए, खड़े होके बोला दैट आई एम नॉट डूइंग द फिल्म, चले गए। हमारा तो प्रोजेक्ट, मेरा तो गया हाथ से। फिर उसके बाद मंसूर ने काफ़ी ट्राई किया मेरे से कि आमिर के साथ ये कर लेते, मेरा सवाल नहीं बता था, मुझे पिक्चर नहीं बनानी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो हुआ था वो सलमान के साथ हुआ था, हमने सलमान को साइन किया था। आमिर शाहरुख दोनों चले गए, फिल्म बंद हो गई, ठीक है। यही प्रोजेक्ट हमने सलमान को अप्रोच किया, सलमान एग्री हुआ। सलमान के साथ हमने कोशिश किया
अक्षय खन्ना, सैफ अली खान, चंद्रचूड़ सिंह। डायरेक्टर को चंद्रचूड़ सिंह से ज़्यादा वो था। कई वजह हुई, सबसे बड़ी वजह थी हम दिल दे चुके सनम, उसको ऑफर हुई थी उस वक्त, तो उसने मुझे क्लियरली ना नहीं बोला, पर शायद कुछ डिसाइडेड था। मैं फिर शाहरुख के पास गया और शाहरुख को बोला, यार मेरा सलमान से ये हो गया है, मुझे नहीं लगता कि सलमान करना चाहता है और वो मुझे घुमा रहा है। तो उसने बोला ठीक है, मुझे 2-3 दिन दीजिए, मैं सोच के बताता हूँ। मैं बोला अब 2 दिन का सवाल नहीं है, तुमको करनी ही पड़ेगी, ये मेरी इज्जत का सवाल है। उसने दूसरे दिन मुझे फ़ोन करके कि बोला यस आई एम डूइंग। उसके पहले ऐश्वर्या कब लॉक हुई थी? ऐश्वर्या कब लॉक हुई? ऐश्वर्या पहले से थी ही, पहले से थी। यस आई एम डूइंग एंड बट ये दोनों फिल्मों की डेटें मिक्स होगी, यस बॉस की और इसकी, वो देखना आपका काम है, कैसे आप सॉल्व करोगे। मैं बोला वो मैं देखूंगा, एक बार तो हाँ बोलो, अनाउंसमेंट आएगी। ये हाँ बोला और अनाउंसमेंट आ गई, मार्केट में सब लोग हिल गए, ये तो सलमान था, कहाँ चला गया। तो ये सब बातों के लिए मैं हमेशा उसको कभी भूलूंगा नहीं। उसकी जगह दूसरा कोई होता तो बोलता मुझे नहीं करनी। ये उसकी अच्छाई है, दैट्स व्हाट ही इज ऑल अबाउट। ईगो बहुत है। नहीं, ईगो जब कभी होता है ना, उसको या तो गलतफहमी में होता है या रियल में सामने वाला कभी मिस्टेक से गलत चलता है। At 60, what do you have to tell शाहरुख? सॉरी, शाहरुख को क्या बोलना चाहोगे? Now he turns 60. नहीं मैं सी आई वांट टू टेल हिम कि ओके, बी ऑलवेज व्हाट यू आर एंड आई will always pray to God that he becomes bigger day by day and he remains friend to me। और मुझे और क्या उनसे चाहिए, बस वही हमारी पुरानी यादें, जो बहुत कुछ हमने किया। मतलब मैंने करीब उसके साथ सब फिल्मों में मिला के मुझे नहीं लगता कि 1000 दिन से कम बिताए होंगे साथ में, क्योंकि पहले तो मेरा भी ऐसा था कि मैं हर फिल्म की शूटिंग पे हर दिन रहता था, चाहे आउटडोर हो या इंडोर हो। पर हाँ, मैं हूं ना के बाद अब कुछ प्लान बोल तो रहे थे मुझे कि आपकी बाजीगर पार्ट 2 का प्लान चल रहा है, बातें हो रही हैं। मैं 10 साल से सोच रहा हूँ। मेन इशू इज स्क्रिप्ट। जब तक मुझे खुद को, हम कितनी स्क्रिप्ट पे काम कर चुके संचिता को मालूम है, जब तक मुझे खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है मैं उसके पास क्या जाऊँ। द डे आई थिंक यार दिस स्क्रिप्ट इज सुपर्ब, तो मैं उसको कन्विंस करने की भी कोशिश करूँ। अभी तो मुझे खुद को ही एतबार होना चाहिए ना पहले तो। उसकी फिल्मों का एक पूरा फेस्टिवल चलने वाला है थिएटर में। हाँ, तो मेरी भी फिल्म मैंने भी चलाई थी, बीच में बाजीगर चलाई थी, अभी भी हम फिर एक बार बाजीगर सोच रहे हैं। लेकिन जब भी फेस्टिवल चलेगा तो कौन करेगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अगर यशराज और शाहरुख है तो फिर यशराज की फिल्म में आएगी, कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है तो वो सब फिल्म में लेगा। तो वो लोग अभी भी देखना चाहते हैं, देखते हैं। और ऐसे अगर आप देखो ना तो आज पूरे इंडिया का जो भी फिल्म लविंग क्राउड है उसमें सबसे ज़्यादा फैन शाहरुख के ही हैं। इंडिया का फर्स्ट इंडियन डायस्पोरा स्टार शाहरुख। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो पहला स्टार जो बना है शाहरुख खान, दैट वर्कड फॉर हिम आल्सो इन अ बिग वे, यू थिंक? या उसका देखो आज भी अगर आप ओवरसीज चले जाओ, कोई भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में, लोग सबसे ज़्यादा शाहरुख खान को जानते हैं। शायद दिलीप कुमार को लोग आज का जनरेशन इतना नहीं जानता, अमिताभ बच्चन को बहुत से लोग जानते हैं, और शाहरुख को जितना जानते हैं किसी को नहीं जानते, ये पक्का है। डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट्स ओपनड अप। या स्मॉलर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, दैट्स व्हाट आई एम बीइंग टोल्ड। उसका हार्डवर्क और उसका एंथुसिज्म है, वो इतना उसको वो है ना अंदर से कि ही वांट्स टू डू एवरीथिंग, जो कई लोग सुस्त हो जाते हैं, ये नहीं होता। फराह खान वाज योर आइडिया और शाहरुख का आइडिया? शाहरुख फराह खान शाहरुख से मिल रही थी बहुत दिनों से। शाहरुख ने पूरा प्रोजेक्ट ओके कर लिया था, फिर मुझे इन्वॉल्व किया था। सही बात है, मेरा उसमें कोई खास मतलब वो नहीं था अदर देन बिजनेस पार्टनर।
How good is a business partner, Shah Rukh Khan? His commitment is commitment. But he is not interested only in money. Money is important, he says, but he doesn't work for only money. ये उसका है एक, जो कई लोग करते हैं, इतना पैसा दे दो तो कर लूँगा.